Is there no entry point for a computer science engineer in 2026 who wants to get into the industry? Is computer science a rat race? We'll be answering all these questions in this video. 2018 में अगर तुम computer science लेते ना तो तुम्हारे पास एक clear ladder था, clear roadmap था कि तुम्हें क्या करना है. First से fourth year DSA grind करो, problem solving सीखो, competitive programming करो, कुछ projects बनाओ and companies में apply कर दो. But आज के टाइम में ना बहुत सारी चीजें change हो गई हैं. Clear steps नहीं है because the whole computer science engineering itself is going through an evolution. Itself is unclear कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो 2 साल बाद एक्चुअली काम कर क्या रहे होंगे एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. यूएस में जूनियर डेवलपर्स की हायरिंग ना 73% से कम हो गई इन 2025. इंडिया में टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला. 37% कंपनीज ओपनली बोल रही हैं कि वो जूनियर इंजीनियर्स की जगह एआई को प्रेफर करती हैं. अगर तुम एक टीयर 1 कंपनी में हो तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए, या टीयर 2 में हो तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा एफर्ट मारते हो, तुम सेम कंपनी में जा सकते हो. या फिर अगर तुम टीयर 3 में हो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट ऑप्शन था टू गेट इनटू टीसीएस की प्रो एट 3.5 lakhs या 4 lakhs. देन 2-3 साल काम करके यू कैन गेट अप टू 10 lakhs to 12 lakhs at a mid level role, and after a few more years when you go to the senior level you can get up to 20-25 lakh rupees as a tier 2 tier 3 student. On the other hand, if you are from a tier 1 college, you can get up to 50, 60, 70, 80, even 1 crore offer with 5 to 7 years of experience. And that is not any random data on the internet. That is what my friends are currently earning who started programming in 2017. अब इन सब चीज़ों की वजह से there is a biggest structural shift which is happening right now, and there is no one who is telling you the truth. I'm not here to sell any courses. I don't have any courses. I'm currently a founder of a consumer AI company. I have raised funds from Entrepreneurs First. Before that, I had a company which got acquired where we had more than 5,000 students who I mentored. And before that, I used to work at Microsoft. So I don't have any agenda to give you false information because I'm not planning or I don't want to sell any course or anything to you. अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देख लिया ना तो एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ. जो पिक्चर तुम्हें काउंसलर्स ने बताई है कि तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लोगे एंड तुम्हारी पहली नौकरी जो लगेगी वो 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, बहुत ईजी है. तुम्हारे सामने ऐसे 5 कंपनीज आएंगे जो तुम्हें ऑफर दे देंगी, which is very wrong. Not just wrong, it is just outdated. Oracle has laid off over 3,000 employees between August and September last year. Fresh waves of layoffs now appear to be on the horizon. The move comes after the company slashed thousands of jobs worldwide in March. Students across campuses of the Indian Institute of Technology and the National Institute of Technology. What we are finding is we are not far from a world, I think we'll be there in 3 to 6 months, where AI is writing 90% of the code. And then in 12 months, we may be in a world where AI is writing essentially all of the code. अभी ना लास्ट क्लिप के बारे में थोड़ा सोचो. ये एंथ्रोपिक के फाउंडर है. इन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि 90% ऑफ द कोड विल बी रिटन बाय एआई. बट अभी भी 90% कोड एआई नहीं लिख रहा है, बट इट इज वेरी क्लोज टू दैट एंड सूनर और लेटर ये हो जाएगा. If you are currently in your 12th standard, if you are currently in your first or second year and you are deciding whether you should pursue this path or not, you have to do something or decide it right now. अब next कुछ भी आगे बढ़ने से पहले तो मैं पहले एक बेसिक समझा देता हूँ because बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती क्या है. They just think it is software engineering, but software engineering is just a part of computer science engineering. अब computer science engineering बेसिक तुम्हें computers को, softwares को build करना and optimize करना सिखाता है. तुम्हें operating system से लेके web development, AI, apps, ये सारी चीजें तुम सीखते हो if you are enrolled in a computer science engineering degree. इसमें ना तुम्हें सिर्फ कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती, इसमें तुम्हें सब कुछ सिखाया जाता है अराउंड अ कंप्यूटर. तुम्हें सिखाया जाता है नेटवर्किंग क्या होती है, तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है. इसके साथ साथ तुम्हें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकग्निशन एंड ऐसे बहुत सारे और सब्जेक्ट भी सिखाए जाते हैं. एंड डिग्री कंप्लीट करने के बाद ना देयर इज नॉट जस्ट वन रोल दैट यू कैन गेट इनटू. देयर आर plenty of roles that you can get into. Some of them are like actually a software developer, web developer, mobile app developer, artificial intelligence or machine learning engineer. Currently there's Gen AI engineer, AI engineer, applied AI engineer, then there is cybersecurity specialist, data engineer, and there are so many. The list goes on and on. Before moving forward in this video, I just want to answer the elephant in the room. Ki is CSE even valuable in 2026 or not? Honestly, it is still valuable. AI and machine learning engineers की आज के टाइम पे डिमांड इंक्रीज हो रही है. There are so many new type of roles which are coming up. There was nothing as an applied AI engineer a few years back. There was nothing as a context engineer a few years back.
So it is an evolution cycle which computer science engineering or software engineering is going through right now. India में 65% of the hiring is currently happening in AI, machine learning, cloud and cyber security. बस AI और machine learning engineers ना पूरा जो hiring demand है उसका 13% को account for करते हैं. And generative and LLM engineers की जो demand है वो 26% से increase हो रही है. And globally देखोगे ना तो Anthropic and OpenAI जैसी companies $900K which is equivalent to 9 crore rupees तक दे रही है for these type of developers. And that is not the highest compensation. That is just the median. तो जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला CSE is not dead. It is just going through an evolution and evolution takes time. अगर तुम बचपन में पोकेमॉन तुमने देखा हो, डिजिमॉन देखा हो by chance, तो उसमें तुमने देखा होगा there is a stage when the actual Pokemon or that Digimon evolves and वो बीच में जो time period होता है ना वो थोड़ा uncertain होता है. वैसे ये भी uncertainty वाला time है. No one knows what is going to happen exactly in which field and what will be the exact role what a software engineer is going to do in the coming years. The only concerning part right now is the entry point. कि तुम्हें एक्चुअली इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी कैसे. अगर तुम्हें एक बार एंट्री मिल जाती है ना तो इट्स फाइन. यू कैन फिगर आउट बिकॉज यू आर देयर, यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे. देखो ये वाली वीडियो ना CSE पे फोकस्ड है, बट देयर इज अनदर ब्रांच जो तुम्हारी कोर ब्रांचेस हैं. फॉर एग्जाम्पल ECE हो गया, EE हो गया, EEE हो गया. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ. But honestly, these are also very good fields. They were a very good field like 10 years back, before the whole mobile app boom came, before Netflix, Google, Microsoft started paying so much to software engineers. These engineers were valued and they are getting valued again. If you must have seen the people who joined Nvidia 10 to 15 years ago are multi-millionaires right now. तो भाई सारे core branches अभी भी उतने ही relevant हैं जितने कुछ टाइम पहले थे. तो you can even check them out if you are currently looking for which branch you want to join. एक बार देखते हैं कि exactly हुआ क्या. तो 2022 में GitHub Copilot launch हुआ था, ठीक है. उसके बाद थोड़े ही टाइम में ना उसको 10 लाख डेवलपर्स ने यूज करना स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद ChatGPT नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था एंड बहुत ही जल्दी they had hit 100 million users. उसके बाद तो फिर तुम्हें पता ही है, उसके बाद Claude आया, Gemini आया, Cursor आया, तुम्हारा Replit आया, and there are so many AI tools right now, so many AI companies right now which came after that. So जब भी इकोनॉमी इवॉल्व होती है तो जो तुम्हारे पैसा है ना वो घूमता है, राइट. एक कंपनी से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, वापस उस कंपनी में भी आ सकता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. यस, अर्लियर इफ समवन नीडेड 10 डेवलपर्स टू बिल्ड समथिंग, नाउ दे ओनली नीड 2 मे बी और इवन 1. अब यार ये ना पहली बार नहीं हुआ है. अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ. 1950s में ना असेंबली प्रोग्रामर्स होते थे जो अपने आप को भगवान समझते थे, बिकॉज वो बहुत कम लोगों को स्किल आता था एंड दे वर हाईली पेड एट दैट टाइम. अब वो क्या करते थे, हर एक इंस्ट्रक्शन को ना मैनुअली डालते थे एंड उससे जो तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी फंक्शंस होने होते थे वो होते थे. अब 1957 में फोर्ट्रान आई, उसके बाद तुम्हें पता ही है फिर C आई, तुम्हारी जावा आई एंड और सारी लैंग्वेज आई. जब फोर्ट्रान आई तो जो असेंबली प्रोग्रामर्स है ना उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि क्या ही है, नहीं भाई हमारी नौकरी थोड़ी जा सकती है, हम तो बहुत स्मार्ट है, हम तो ये करते हैं. बट दैट इज व्हाट हैपेंड बिकॉज द न्यू पीपल हु केम and those who evolved and started learning Fortran or C or Java were the developers who eventually became more successful, and people who still just new assembly were just gone in the next 10 years. अब इससे एक फायदा और हुआ, जितना पिछले 10 सालों में सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ था उससे बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ in the coming 10 years. And पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि there will be so many tech companies or so much software that will be developed if we have a high level programming language. But that happened, and that is the exact same thing which is happening right now. If you know that the number of companies that are getting created, the number of products that are coming out is so huge. So जो software engineers हैं जिनको DSA आता है, जो CRUD applications बनाते हैं, they are skilled. But the entry to barrier or the level that these companies are asking for right now has increased. That is not even considered as skilled right now. That is the basics that you need to learn. तो यार चीजें अब चेंज हो रही हैं बहुत ज्यादा, राइट. एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड यार मैंने रिसेंटली कोडेक्स पे एक वीडियो बनाई थी. मैंने उस पर समझाया था तुम कोडेक्स को कैसे यूज कर सकते हो. अगर तुम्हें पता नहीं कोडेक्स क्या होता है तो वो OpenAI का कोडिंग टूल है जिससे तुम कोड करते हो, जिससे तुम प्रोजेक्ट्स बनाते हो एंड उसके अलावा तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो उसके साथ. इट इज अ सुपर ऐप. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग that you need to know about Codex in that video, so definitely check that out. And similarly और चीजें ऐड होती जा रही हैं जो तुम्हें आनी चाहिए. पहले जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, सिस्टम डिजाइन या लो लेवल डिजाइन नहीं एक्सपेक्ट किया जाता था फ्रॉम अ जूनियर इंजीनियर, बट आज के टाइम पे वो करना स्टार्ट हो गया है बिकॉज
तुम सारा काम जूनियर इंजीनियर से करा रहे हो अब, जो कि एआई है, राइट? तुम एक सीनियर इंजीनियर का काम कर रहे हो, तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अब मैं तुम्हें एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो 3 तरीके के तुम्हारे अभी डेवलपर्स हैं। फर्स्ट ईयर के जो डेवलपर्स हैं उनको सिर्फ CRUD एप्लीकेशन आती है, वो भी हो सकता है अच्छे से ना आती हो। दीज आर द पीपल हु आर क्राइंग कि भाई हमारी नौकरी चली गई है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। उसके बाद सेकंड ईयर आती है पीपल हु हैव सम एक्सपीरियंस either by working at a company, they have been working for 2 to 3, 4, 5 years, or they were someone जो कॉलेज में हैं बट उन्होंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनको पब्लिकली पोस्ट किया, एक्चुअली एक्टिव यूजर्स उनको यूज कर रहे हैं। दिस इज टियर 2 एंड टियर 1 इज पीपल हु हैव डेप्थ इन व्हाट दे डू। जब तुम्हें डेप्थ आ जाती है तो तुम एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा इंजीनियर हो गया, एक जेनएआई इंजीनियर हो गया, एक अप्लाइड इंजीनियर हो गया। These are all software engineers। तो जो टियर 3 वाले थे ना, जो सबसे नीचे थे, वो एक्सटेंशन के उसमें हैं। दे आर लाइक यार हमारा तो काम ही नहीं बचा, CRUD तो जेन्युइनली है बना देता है, एंड दैट इज द इशू। अब देखो सैलरी के बारे में इसमें बात नहीं करते हैं। सैलरीज ऑब्वियसली जब तुम्हें एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाता है तो तुम्हारी सैलरीज इंक्रीज होती जाती है। टियर 1 डेवलपर्स की इसलिए सैलरी कंपेरेटिवली कम होती थी, एंड स्किल्स नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। जो बेसिक स्किल पहले चाहिए होता है 10 साल पहले, वो अब उससे ज्यादा चीजें चाहिए होंगी। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? यू शुड मेक योर ओन स्ट्रक्चर एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब तुम्हें अपना खुद का लैडर बनाना पड़ेगा, तुम्हें खुद का अपना सीखना पड़ेगा क्या करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, शिप थिंग्स। जो भी तुम्हें आइडिया आ रहा है, जो भी तुम सोच सकते हो, कुछ भी अगर तुम्हें करना है तो उसको शिप करो। डोंट जस्ट कीप इट एज अ गिटहब रेपो, उसको एक्चुअली शिप करो, रियल यूजर्स लाओ। तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे। हो सकता है तुम 500 यूजर्स ले आए, तुमने एक सिंगल पर्सन के हिसाब से ऐप बनाया था, तुम्हें समझ आएगा कि उसको स्केल कैसे करना होता है, तुम्हें समझ आएगा कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। यू विल लर्न कि यूआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे तुम्हारे ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ पे यूजर्स छोड़ के जा रहे हैं, फ्लो को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड इज डायरेक्ट एआई। ठीक है, डायरेक्ट एआई का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट एआई को यूज करो। डायरेक्ट एआई से मेरा ये मतलब है act as a senior engineer, use AI as your junior engineers, divide the tasks into multiple subtasks। एक एजेंट से एक काम करो, दूसरे से दूसरा कराओ, उस काम को रिव्यू करो एंड रिव्यू करके पब्लिश करो। दैट इज व्हाट यू शुड लर्न। दिस इज तुम्हारा एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। ये तुम्हें आना चाहिए क्योंकि ये एक नेसेसिटी टाइप बन गई है फॉर एनीवन हु इज नाउ कमिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने रिसेंटली कोडेक्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था हाउ यू कैन यूज कोडेक्स एज अ प्रो। उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बहुत बड़ा बढ़िया अच्छा ट्यूटोरियल है, सब कुछ इजीली समझाया है, तुम उसको अपने हर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। अब यही जो जितनी भी चीजें ना कि ये कॉन्टेक्स्ट देते कैसे हैं, उसको ही हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। डायरेक्ट करना, ऑर्केस्ट्रेशन करना, सारी चीजें आंद्रे करपाती जो ओपनएआई को फाउंड किया, नाउ ही हैज जॉइंड एंथ्रोपिक, इफ यू डोंट नो, वो इसी चीज को ना कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, डू लेट मी नो, आई विल मेक दैट फॉर यू। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है तुम्हारा पिक अ डोमेन। सो व्हेन आई वाज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, सो मेरा जो फर्स्ट मैनेजर थे ना, ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस कि यू शुड like work like a T-shaped developer। T-shaped developer का मतलब क्या होता है कि you should have the breadth of everything that is there, you should know everything and ये धीरे धीरे तुम acquire करते हो, but you should have depth of one thing, you should learn one thing in so much depth that no one else can replace you। And earlier it was not that relatable, but when I now think about it, it is super relatable। अगले 5 सालों में ना सबसे ज्यादा इंसुलेटेड इंजीनियर वो नहीं होगा जिसको कोडिंग आती है, वो होगा जिसको एक डोमेन अच्छे से समझ आती है और उसके साथ साथ उसको एआई भी समझ आता है। फॉर एग्जांपल तुमने फिनटेक में थोड़ा काम किया तो तुम्हें फाइनेंस के रूल्स, रेगुलेशन, कंप्लाइंस सारी चीजें समझ आती हैं एंड यू ऑल्सो नो हाउ टू यूज एआई। सिमिलरली हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मा हो गया, देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे तुम्हें उनके नुआंसेस पता होने चाहिए एंड उनको एआई यूज करना नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। यू कैन बी दैट पर्सन हु विल हेल्प देम do it। अगर तुम्हें सारी चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लाइक दिस, डू लेट मी नो तुम्हें क्या वीडियोस चाहिए एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी एंड हेल्प्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। अब चौथी चीज तुम्हारी आ जाती है सिस्टमैटिक थिंकिंग। सिस्टमैटिक थिंकिंग से मेरा मतलब यही है कि एआई एक्चुअली किसके बाद क्या काम करेगा, तुम्हारे सिस्टम्स में चीजें कैसे ब्रेक डाउन होगी। अगर तुम एक बैकएंड बना रहे हो किसी चीज का, फॉर एग्जांपल तुम्हें चैटबॉट बनाना है, राइट, तो चैटबॉट में डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा रिट्रीव कैसे होगा, जब तुम्हारी कॉन्टेक्स्ट विंडो भर जाएगी तो कॉन्टेक्स्ट विंडो खाली कैसे करोगे, उसको कंप्रेस कैसे करोगे, ऑल दिस इज सिस्टमैटिक थिंकिंग। ब्रेकिंग डाउन बिगर प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्विंग दोज स्मॉलर प्रॉब्लम्स। स्मॉलर प्रॉब्लम्स का कोड तुम एआई से इजीली लिखवा सकते हो। अब तुम लीड कोड के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाते हो, बस तुम्हें आर्किटेक्चरल
जो ट्रेड ऑफ्स हैं वो नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब यूज़ करनी चाहिए, तुम Next.js यूज़ कर रहे हो, React.js यूज़ कर रहे हो, उनमें डिफरेंस क्या होता है, तुम React नेटिव या Flutter में से कौन सा तुम्हें यूज़ करना चाहिए, नेटिव ऐप्स जब तुम बनाते हो तुम्हें स्विफ्ट कब सीखनी चाहिए, तुम कब रिएक्ट नेटिव से ही ऐप बना सकते हो। देयर आर सो मेनी नुआंसेस दैट यू नीड टू लर्न। लास्ट बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी विजिबल। विजिबिलिटी से मेरा ये मतलब नहीं है जाके कंटेंट बनाना शुरू कर दो, विजिबिलिटी से मेरा ये मतलब है बी एट द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम। एंड इसका एक ही तरीका है, टॉक टू मोर पीपल एंड पुट योरसेल्फ आउट देयर। इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से करके कर सकते हो। तुम रियल यूजर्स जब लाओगे, रियल यूजर्स तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, तो पीपल विल स्टार्ट नोइंग अबाउट यू। आई हैव गॉटन सो मेनी जॉब opportunities because I am on X, I am on LinkedIn, I am on YouTube and people reach out to me. Same thing can be with you. तुम्हें बस अपना डोमेन सेलेक्ट करना है और उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है। जॉइन कम्युनिटीज, जॉइन ऑनलाइन चैनल्स, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हो, दूसरों को करो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो एंड ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। आई एम सॉरी, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट like 2-3 years back and it was true, but it is not true now. So yeah, I am being very honest with you guys. So if you like this video, do let me know. Thank you so much for watching. हमने सारी चीज़ों की बात कर ली है। If you are someone who is considering computer science in 2026, you should go for it. The only thing that you need to think about is it is currently in an evolution state. No one knows what is going to happen. Everyone who is telling you that 5 साल में ऐसा हो जाएगा, 5 साल में वैसा हो जाएगा, is just bluffing. ठीक है, इट्स लाइक पोकर। तुम उसको देख के नहीं बता पाओगे वो ब्लफ कर रहा है, बट वो इंटरनली ब्लफ ही कर रहा है। So the simple thing that you can do right now is these 5 steps. Create your own path, create your own roadmap, learn things, implement things, ship things, post about it, get users, get user feedback, and actually become a problem solver, actually become a developer, not just a ChatGPT coder. So thank you so much for watching this video. I hope you guys liked it. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए